Good afternoon, students, and welcome to online lecture of Sharaddi More English School. So today I am going to teach you History 9 chapter Heritage Management. So the first part of this chapter we had completed in our last class. Today I am going to teach from here British Museum, England. Okay. The British Museum in London was established in the 18th century CE. Yes. So अब ये जो म्यूजियम था British Museum, right? So this museum was established in the 18th century. Okay. Sir Hans Sloane, a natural scientist, handed over about 71,000 objects in his collection to the King of England, George II. Yes. So जो सर हैंस सोलोन थे, उन्होंने जो ऑब्वियसली वो एक नेचुरल साइंटिस्ट है, तो उन्होंने उनके जो 71,000 जो ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन था, तो उन्होंने किसको हैंड ओवर कर दिए थे, जो वो टाइम पे इंग्लैंड के जो किंग थे जॉर्ज सेकेंड, तो उनको हैंड ओवर कर दिए थे उनके सारे ऑब्जेक्ट्स, 71,000 ऑब्जेक्ट्स. ओके. इट इंक्लूडेड सेवरल बुक्स, पिक्चर्स, स्पेसिमेंट्स ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स, हर्बेरियम एक्सेट्रा. यस. अब उसमें जो 71,000 जो ऑब्जेक्ट्स थे, तो उसमें क्या क्या था, सेवरल बुक्स थी, पिक्चर्स थे, फिर स्पेसिमेंट्स ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स इसके बारे में थी. ओके. लेटर okay. Later the collection was expanded by addition of various art objects and ancient artifacts collected by the British people. yes, फिर बाद में ये जो कलेक्शन था वो क्या हो गया था और ज़्यादा एक्सपांड हो गया था. ओके. और इसमें जो जैसे एंशियंट जो अदर आर्ट्स ऑब्जेक्ट्स थे वो भी इसमें ऐड हो गए थे, प्लस जो एंशियंट आर्टिफैक्ट थे वो भी इसमें ऐड हो गए थे. मतलब और वो किसने कलेक्ट किया था, जो ब्रिटिश पीपल्स थे उन्होंने कलेक्ट किए थे, राइट, ब्रिटिश कॉलोनीज़ के थ्रू. Presently, the museum collection comprises about 80 lakh object. और अभी वहाँ पर मतलब वो जो म्यूज़ियम है इंग्लैंड में, तो उस वो म्यूज़ियम में कितने ऑब्जेक्ट्स है, टोटल 80 lakh objects are available in that museum. Okay. This is a picture of that museum, British Museum, England. Okay. Now next one is National Museum of Natural History, United States of America. This Museum of Natural History, managed by the Smithsonian Institution, was established in 1846 CE. Yes. अब ये जो म्यूज़ियम था, राइट, ये क्या था, नेचुरल हिस्ट्री के थ्रू मैनेज किया जाता था बाय स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट. ओके. जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1846 CE में. It houses more than 12 crore 120 million specimens of fossils and remains of plants and animals, minerals, rocks, human fossils and artifacts. अब इसमें क्या क्या था देखो, ऑब्वियसली 12 करोड़ से इट हाउसेज मोर देन 12 करोड़ और 120 मिलियन. तो उसमें क्या था, फॉसिल्स से स्पेसिमेंट्स ऑफ फॉसिल्स और जो रिमेन्स पार्टिकल्स होते थे प्लांट्स के, वो एनिमल्स, मिनरल्स, रॉक्स, ह्यूमन फॉसिल्स और आर्टिफैक्ट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल थी. नाउ म्यूजियम इन इंग्लैंड. ओके. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, राइट, जो अमेरिका में सिचुएटेड है. ये वो म्यूजियम है. नाउ म्यूजियम इन इंडिया. द फर्स्ट म्यूजियम इन इंडिया The first museum in India, Indian Museum, was established by Asiatic Society by Bengal in Kolkata. Yes, so India में, in our country, the first museum was established in Kolkata. Okay, जो first museum था हमारी country में वो कहाँ पे establish हुआ था, कोलकाता में, in 1814 CE. Okay, और उसको establish किसने किया था, it was established by Asiatic Society. Okay. The second museum in India, Government Museum, was established in Chennai in 1851 CE. Yes. So that means the first museum in our country was established in the year of 1814, and the second museum in our country that was started in Chennai 1851. Okay. And the name of that museum is Government Museum. Means the name of the second museum of our country, that is Government Museum, and the name of first museum of our country is Indian Museum. The National Museum was established in Delhi in 1949. After that,
One more museum was established in our country, and the name of that museum is National Museum. Okay, and it was established in Delhi in the year of 1949. That means after independence. Presently, there are several museums in various states of India. Yes, right now there are so many museums in our country. Okay, in various states there are different museums. Usually the big museums have their own archive and libraries. Yes, और जो big museums है, so in that museum they had their own archives or libraries. Some museums are affiliated to universities, और कुछ ऐसे museums है that are directly affiliated to universities, and such museums also offer courses in museology. Yes, और ऐसे बहुत सारे museums है जो क्या देते हैं, कोर्स देते हैं. They offer course in museology. Okay, means जो museum से related जो study होती है, okay, तो उसके courses देते हैं. Following are some of the well-known institutes and universities which offer degree and diploma course in museology. Yes, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, they had given us some name of some institute or universities that had given the degree or diploma in the courses of museology. museology जो कोर्स है तो उसमें डिग्री और डिप्लोमा करने की ऐसी बहुत ये क्या है, यूनिवर्सिटीज़ है और इंस्टीट्यूट्स है हमारी कंट्री में. सो फर्स्ट इज नेशनल म्यूजियम दिल्ली. ओके, सेकंड वन इज महाराज सयाजीराव यूनिवर्सिटी वडोदरा, कोलकाता यूनिवर्सिटी कोलकाता, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, अलीगढ़ म्यूजियम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर. ओके, नाउ छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय. In 1940 CE, some influential resident of Mumbai decided to establish a museum to commemorate the visit of Prince of Wales to India. Yes, अब 1904 में क्या हुआ था, कुछ ऐसे रेसिडेंट पीपल थे मुंबई के, उन्होंने क्या डिसाइड किया था, दे डिसाइडेड टू इस्टेब्लिश अ म्यूजियम. उन्होंने डिसाइड किया था क्या, दे मीन्स टू इस्टेब्लिश अ म्यूजियम. उन्होंने सोचा था कि उन्हें क्या करना चाहिए, मुंबई में एक म्यूजियम इस्टेब्लिश करना चाहिए. किस चीज़ के लिए, टू कॉम्यूमरेट द विजिट, जो प्रिंस आए थे हमारी कंट्री में, प्रिंस ऑफ वेल्स जो आए थे विजिट करने हमारी कंट्री में, तो उनको कम्यूमुलेट करने के लिए. ओके, in the month of November of 1905 CE, the foundation was laid of the museum building. Yes, so in the month of November 1905. Okay, so at this year जो म्यूज़ियम का फाउंडेशन था वो स्टार्ट किया गया था. मीन्स इन दिस ईयर दे लेट द फाउंडेशन ऑफ द म्यूज़ियम. ओके, it was decided that the name of the museum would be Prince of Wales Museum of Western India. Yes, and the people of that means the people who decided to establish a museum in Mumbai, so that people decided the name of that museum. Okay, so what name they had decided, they decided the Prince of Wales Museum of Western India. Okay, it was renamed as Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya in 1998 CE. Yes, so जो अभी रिसेंटली जो नेम है छत्रपति शिवाजी वास्तु संग्रहालय, राइट, तो ये जो नेम का म्यूजियम है हमारी मुंबई में, सो इसका जो नेम था फर्स्ट वो क्या था, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया. ओके, अब उसको रीनेम कर दिया गया था इन द ईयर ऑफ 1998. The building of the museum is built in Indo-Gothic style. It has been given the status of great first heritage building in Mumbai. Yes, so जो building थी म्यूजियम की वो कैसी थी, that was in Indo-Gothic style. Indo-Gothic ये जगह आपको दिख रहा है, ऐसा कोवा बना हुआ है, तो वैसी स्टाइल में बनी हुई है. And it has been given the status of great one, मतलब उसकी वजह से, इसकी स्टाइल की वजह से उसे क्या दिया गया था, ग्रेट फर्स्ट दिया गया था. ओके, हेरिटेज बिल्डिंग में मुंबई में. The museum houses about 50,000 antiquities divided into 3 categories: arts, archaeology and natural history. Yes, अब ये म्यूजियम में कितने हाउसेस थे, 50,000 हाउसेस, राइट. और उसमें क्या किया था, उनकी जो एंटीक्विटीज़ थी, मतलब उनके पास जो चीज़ें थी, तो उसे उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था. 1 इज़ फॉर आर्ट्स,
second one is for archaeology, and the last one is for natural history. Okay. Now libraries and archives. Yes, so here 9.3 is libraries and archives. Okay. Libraries are the storehouses of knowledge and information. Yes, all we know जो libraries होती है वो क्या होती है, वहाँ पे क्या होती है, जो बुक्स होती है वो स्टोर की जाती है, राइट. दैट्स वाई लाइब्रेरीज आर द स्टोर हाउसेज ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन. वहाँ पे क्या होती है, बुक्स होती है, और बुक्स में क्या प्रोवाइड की जाती है, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन. Library science is very closely related to management science, information technology and the field of education. Yes, अब जो लाइब्रेरी साइंस होती है, साइंस की जो लाइब्रेरी होती है वो किससे क्लोज करती है, किससे रिलेट करती है, मैनेजमेंट साइंस से, प्लस जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहती है उससे, और जो एजुकेशन की फील्ड होती है उससे. Libraries perform various tasks like collecting books, arranging them systematically, conservation and preservation of those books. Yes. अब लाइब्रेरी जो होती है वो क्या परफॉर्म करती है, बहुत सारे टास्क परफॉर्म करती है, जैसे कि बुक को कलेक्ट करना, फिर इसको सिस्टमेटिक अरेंज करना, फिर उसको कंजर्व करना, उसको संभाल के रखना, उसको प्रिजर्व करना, फिर डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज एक्सेट्रा. मेनी ऑफ दिस टास्क आर कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटराइज सिस्टम. यस, अभी इससे मतलब ऐसे बहुत सारे जो टास्क होते हैं जो किसके किसके थ्रू, किसकी हेल्प से कंप्लीट होते हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम के वजह से क्या होते हैं, वो कंप्लीट होते हैं. टू मेक अ बुक अवेलेबल टू अ रीडर एज पर हिज रिक्वायरमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट. यस, ऑब्वियसली अब टू मेक अ बुक अवेलेबल, ऑब्वियसली ऐसी बुक्स जैसे जो रीडर्स होते हैं, जो बुक रीड करते हैं, तो वो रीडर्स को जैसी बुक चाहिए होती है रीडिंग करने के लिए, मतलब एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है किसके लिए, लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए, मतलब ऐसी बुक को अवेलेबल रखना लाइब्रेरी में. The Royal Library of Ashurbanipal, 7th century BCE, the Assyrian Emperor of Mesopotamia, the library at Takshashila University, 5th century BCE, 5th century CE, and the library in Alexandria, Egypt, 4th century BCE, are supposed to be the earliest libraries in the world. Yes, अब यहाँ पे जो libraries के name दिए, so these libraries are the earliest libraries of the world. Okay. The Saraswati Mahal Granthalaya in Tanjavur, Tamil Nadu was built in 16th-17th century during the time of Nayak dynasty. Yes. अब यहाँ पे we are talking about India, right? So इंडिया में जो सरस्वती महल ग्रंथालय थी, right, in तंजावुर तमिलनाडु, तो this library was built in 16 और 17th century और during the period of Nayak dynasty, मतलब जब तमिलनाडु में नायक डायनेस्टी थी, तो at that time this library was built there. Okay. In 1675 CE, Vyankoji Raje Bhosle conquered Tanjavur and established his independent rule. Yes. So, in 1675 CE, जो व्यंकोजी राजे भोसले थे उन्होंने क्या कॉन्कर्ड किया था, ही कॉन्कर्ड तंजौर, इन्होंने तंजौर को कॉन्कर्ड किया था. एंड आफ्टर कॉन्कर्ड तंजौर ही इस्टेब्लिश हिज इंडिपेंडेंट रूल, उन्होंने उनका खुद का रूल वहाँ पे स्टार्ट किया था. Vyankoji Raje Bhosle and his successor kept expanding सरस्वती महल ग्रंथालय. Yes, अब ये जो व्यंकोजी भोसले थे, ऑब्वियसली उन्होंने और उनके जो सक्सेसर थे उन्होंने क्या किया था, ये जो लाइब्रेरी थी सरस्वती महल ग्रंथालय है ना, तो इसको ये क्या कर रहे थे, एक्सपांड कर रहे थे, मतलब इसके अंदर और ज़्यादा बुक्स अवेलेबल कर रहे थे. ओके. Sarfoji Raje Bhosle contributed the most in this expansion. Yes, so who was the most expansion in this?
मीन्स हु मेड द मोस्ट कंट्रीब्यूशन इन दिस लाइब्रेरी? सरफोजी राजे भोसले। ओके, इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया था इस लाइब्रेरी में, मीन्स ये लाइब्रेरी को एक्सपांड करने में। In 1918, the library was renamed as the Tanjavur Maharaja Sarfoji Saraswati Mahal Library. Yes, so that's why वो जो library थी, so that library name was renamed, and the new name was given to that library is Tanjavur Maharaja सरफोजी सरस्वती महल लाइब्रेरी। ओके, उनके ऑनर के लिए नेम दिया गया था उसको। There are several noteworthy libraries in India. For instance, National Library, Kolkata, Nehru Memorial Museum and Library, Delhi State Central Library, Hyderabad Library of Asiatic Society, and David Sassoon Library, Mumbai, etc. Yes, so in our country there are several libraries. Okay, जैसे यहाँ पे name दिया हुआ National Library, Kolkata, Nehru Memorial Museums. Okay, these are the name of the libraries or museums that are situated in our countries. From the technical point of view, the management of archive is akin to library management. Yes, अब टेक्निकल पॉइंट से देखा जाए है ना, फ्रॉम द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू जो मैनेज करते हैं आर्चिव्स को, तो वो कौन करते हैं? लाइब्रेरी मैनेज करती है उसको। ओके, प्रिजर्विंग डॉक्यूमेंट विथ इम्पॉर्टेंट कंटेंट इन देयर ओरिजिनल कंडीशन। Preserving document with important content in their original condition, preparing indexes and creating accurate system of retrieval of document are the important task in the management of archive. Yes, अब देखो जो मैनेजमेंट करती है archive को है ना, तो उन लोगों के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट टास्क होता है, इम्पोर्टेंट वर्क होता है, वो क्या होता है? डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करना। ओके, जैसे यहाँ पे दिया है जो जो इम्पोर्टेंट कंटेंट होते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उसको फिर उसके हिसाब से क्या प्रिपेयर करना? इंडेक्स प्रिपेयर करना। फिर क्रिएट एक्यूरेट सिस्टम क्रिएट करना है डॉक्यूमेंट्स का। और ये क्या है? इंपॉर्टेंट टास्क है जो मैनेज किए जाते हैं आर्चिव में। ओके, डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द आर्चिव आर सपोज टू बी वेरी रिलायबल। अब ये जो डॉक्यूमेंट है, मतलब आर्चिव में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, राइट, तो वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है, राइट, are supposed to be very reliable. Because of the heavy dependency of computerized system, information technology has become an inevitable part of the management of libraries and archives. Yes, अब obviously ये heavy डिपेंडेंसी की वजह से और कंप्यूटराइज सिस्टम की वजह से, कंप्यूटराइज सिस्टम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ये क्या हो गया है? इट बिकेम इनएविटेबल पार्ट हो गया है। ओके, किस चीज़ को मैनेज करने के लिए? जो लाइब्रेरी है और जो आर्चिव है उसको मैनेज करने के लिए। द फर्स्ट ऑफिशियल आर्चिव ऑफ इंडिया, द इम्पीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट वॉज इस्टाब्लिश इन द ईयर ऑफ 1891 CE इन कोलकाता। यस, सो जो फर्स्ट ऑफिशियल आर्चिव हमारी कंट्री में स्टार्ट हुआ था, इस्टाब्लिश हुआ था, वो 1891 CE में हुआ था। एंड द नेम ऑफ दैट आर्चिव वॉज Imperial Record Department. Okay, then that was established in Kolkata. Afterward, it was shifted in Delhi in year 1911 CE. In 1998 CE, the then President of India, Honorable K.R. Narayana, opened the archive for public. Yes, फिर उसके बाद 1998 में जो हमारी कंट्री का प्रेसिडेंट थे एट दैट टाइम, है ना, K.R. नारायण, उन्होंने क्या किया था? ये आर्चिव को ओपन किया था किसके लिए? पब्लिक के लिए। इट इज़ अ डिपार्टमेंट अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। अब ये जो डिपार्टमेंट है ये किसके अंडर में आ रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, इनके अंडर में आता है। द डॉक्यूमेंट हैव बीन प्रिजर्व हियर इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम 1748। मतलब देखो ये आर्चिव में जो डॉक्यूमेंट प्रिजर्व किए गए हैं, तो वो कब से किए गए हैं? मतलब ऑब्वियसली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस में किए गए हैं। कौन से ईयर से लेकर? 1748 से लेकर। इट इंक्लूड्स
रिकॉर्ड इन इंग्लिश, अरेबिक, हिंदी, पार्शियन, संस्कृत एंड उर्दू लैंग्वेजेस। यस, अब ये जो रिकॉर्ड्स है सो वो कौन सी लैंग्वेज में अवेलेबल है? इंग्लिश, अरेबिक, हिंदी, पार्शियन, संस्कृत और उर्दू लैंग्वेज में। इट ऑल्सो इंक्लूड रिकॉर्ड इन मोदी स्क्रिप्ट, और प्लस जो मोदी स्क्रिप्ट होती है उसमें भी इसका रिकॉर्ड इंक्लूड है। ओके, दिस रिकॉर्ड आर क्लासिफाइड इन 4 कैटेगरीज। यस, सो ये जो चीज़ें हैं मतलब ये जो रिकॉर्ड्स है वो मोदी स्क्रिप्ट में भी अवेलेबल है। ओके, दिस रिकॉर्ड आर क्लासिफाइड इन 4 कैटेगरीज। अब ये रिकॉर्ड को 4 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया था। पब्लिक रिकॉर्ड, ओरिएंटल स्टडीज़, मैन्युस्क्रिप्ट और प्राइवेट रिकॉर्ड। ओके, मतलब ये सारे जो पब्लिक रिकॉर्ड जो होते हैं मतलब ऑब्वियसली पब्लिक के लिए पब्लिक को दिखा सकते हैं। फिर ओरिएंटल रिकॉर्ड्स, ओरिएंटल स्टडीज़ मतलब जो स्टडी से रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स होते थे। ओके, और एक मैन्युस्क्रिप्ट होती थी और एक प्राइवेट रिकॉर्ड होते थे। ओके, गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इन इंडिया मेंटेन इंडिपेंडेंट अर्चीव। यस, अब हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है तो उन्होंने क्या किया, मतलब एवरी स्टेट ने क्या किया है, अपना खुद का इंडिपेंडेंट अर्चीव मेंटेन किया है। द अर्चीव ऑफ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ब्रांच इन मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, औरंगाबाद एंड नागपुर। यस, अब अगर हम हमारे स्टेट की बात करें मतलब हमारे स्टेट महाराष्ट्र में जो अर्चीव इस्टेब्लिश हुए हैं तो वो कौन सी प्लेस पे इस्टेब्लिश होते हैं, मतलब उसके जो ब्रांचेस है, राइट, स्टेट गवर्नमेंट ने उसके जो ब्रांचेस है वो कहाँ पे स्टार्ट किए अर्चीव के महाराष्ट्र में? मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, औरंगाबाद एंड नागपुर। देयर आर अबाउट 5 करोड़ मोदी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू मराठा हिस्ट्री इन द पुणे ब्रांच। यस, अब देखो 5 करोड़ मोदी डॉक्यूमेंट्स है कहाँ पे? मराठा हिस्ट्री के, मतलब मराठा हिस्ट्री के 5 करोड़ मोदी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है पूना ब्रांच में, मतलब पूना में जो अर्चीव है तो वहाँ पर 5 करोड़ मोदी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। दिस डॉक्यूमेंट्स आर रिफर टू एज पेशवा दफ्तर, और ये रिकॉर्ड को क्या रिफर किया जाता है? एज अ पेशवा दफ्तर। ओके।